Jai Gurudev everyone and a warm welcome to all. Guru Purnima is a major traditional festival that is celebrated throughout India with great fervor and zeal. This day is widely celebrated to recognize the significant contribution of Guru in our life, who removes the darkness by introducing light and take the mind to a field of happiness to relieve it of suffering. It is a day to remind the importance of gurus and pay our respect to them. So let us all celebrate Guru Purnima by paying deep gratitude and devotion towards our Guru for their guidance by performing and being a part of auspicious Guru Puja. अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोत्रकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् भिन्विधत्ते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो चंदनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः
धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Thank you, everyone. As one beautiful and inspiring way to be in sync with self and channelize our energies is by participating in the practice of Guru Puja. Now, I would like to share a real life story of Gurudev. About 2500 years ago, the first Shankaracharya established these four principal seats, one in the north in Jyotirmath in the Himalayas, one in the south in Sringeri Math near Mysore, one in the east near Puri near Calcutta, and one in the west in that west extreme end of India near Dwarka, Shardapit. These are the four principal seats of Shankaracharya. The seat of the Shankaracharya of the north of the Himalayas was vacant for 165 years. That was the time when Mohammedan reign rule was falling apart and Britishers were coming in and there was chaos all the time. From now about 180 years ago. Like that, somehow the seat of Shankaracharya remained vacant. There was no occupant of that great throne of Shankaracharya.
All the conscientious leaders of public life and good saints were concerned with this seat of Shankaracharya remaining vacant. They held national conferences to select some Shankaracharya, and on the higher circle of the saints, Gurudev was known, so they decided to approach him wherever he was. The story goes that it took him 20 years of persuasion to accept the seat of Shankaracharya, because the life was so drawn out of the field of activity, complete and ideal, most ideal life of a recluse, of a sannyasi. Eventually, after 25 years of persuasion, at the age of 71 years, in 1941, he was installed as Shankaracharya. Now, Shankaracharya means a great institution in himself. Hundreds of people surround him, and all this a great commotion. His life had been of complete silence. Whatever it was, that was the time when he came to, when Shankaracharya used to come. They take him out on great processions with great, all big paraphernalia. In one of the processions, I happened to see him, and when I saw him first time, I said, "Now, fine, this is it." That was the flash to me, and then I surrendered myself. It took me about 2 years for a proper surrender, which could be said to be surrender. And then thereafter, the life was a real blissful life. So this was the story. Now it's time to invite our Honorable Chancellor Sir, Shri Ajay Prakash Srivastav, a man of towering stature, intellectual stalwart, and one who has made immense contribution in the field of education. He is being associated with Maharishi movement since 40 years in international and national projects. Now I request Chancellor Sir to speak few words on this occasion of Guru Purnima. Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev. Today is a very auspicious day. We call it auspicious for two reasons. One, it is a day when we actually celebrate the achievements that we have this is the tradition in our movement. Today we celebrate the achievement that we have made during the year and offer that in the feet of Gurudev. And the second, because it's a Guru Purnima, we offer to Gurudev our respects and devotion. Maharshi has started a tradition in our international movement that on Guru Purnima, everybody will gather together with Maharshi and do Guru Puja and offer the achievements that they have done during the year, when in various countries, in various fields of, and they all gather together and offer to the feet of Gurudev their achievements. Because we believe that whatever we achieve in our life is because of the blessings of our Guru. Guru means Gurudev for us. Guru means Maharshi for us. Although Maharshi never projected himself as Guru. When Maharshi Ji started the movement in 1955, I think it was 1955 or 56 in that area, in that era, then he started his journey around the world, and the only thing he offered to people is what Gurudev has given him, the knowledge of transcendental meditation. So wherever he went, he told everybody that this is the knowledge that was given to me by my Gurudev, by my Guru, Brahmanand Saraswati Maharaj Ji, and I offer to you this knowledge with his blessings. So the tradition started in our organization, which was started by Maharshi, that anytime anybody wants to learn the knowledge that Gurudev has given, the knowledge of transcendental meditation, anytime anybody wants to learn transcendental meditation, first we have to do the Guru Puja, which we just did. This is the sample of Guru Puja that we do. All of you must have learned transcendental meditation. So this is a tradition that the highest respect that Maharshi can give to his Guru, highest respect anybody can give to his Guru, that whatever I am offering to you, whatever I am teaching to you, whatever I'm giving to you, is I have received from my Guru,
I will pay first my homage to my guru, respect to my guru, take his blessings, and then only I will impart this knowledge to you. जितने भी हमारे ध्यान शिक्षक हैं भारत, पूरी दुनिया में, किसी भी देश में हो, किसी भी जात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, ये उनके लिए जरूरी होता है कि कोई भी ध्यान सीखने वाला हो, चाहे किसी जात संप्रदाय किसी उसका हो, पहले हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरुदेव की पूजा करके ही ज्ञान देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का अवसर तो एक दिन होता है जिस दिन हम गुरुदेव को याद करते हैं। एक ट्रेडिशन बनी हुई है समाज में कई हजार सालों की कि गुरु पूर्णिमा के दिन, कई लोग इसको व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, इस दिन हम जो है गुरुदेव को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशन महर्षि जी ने बनाया था वो ये था कि दुनिया में कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय भावातीत ध्यान सिखाया जाए या भावातीत ध्यान के एडवांस प्रैक्टिसेस को सिखाया जाए तो गुरुदेव को याद किया जाए, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स ली जाए। ये महर्षि जी के द्वारा ऐसा गुरुदेव के प्रति उनका जो सम्मान था, उनकी जो श्रद्धा थी, उनका जो डिवोशन था और समर्पण था, वो दर्शाता है कि महर्षि जी ने कभी भी, जब हम लोग छोटे थे, कभी कभी महर्षि जी के मूवमेंट ऋषिकेश में जो आश्रम था वहां जाते थे, तो कई लोग आके महर्षि जी से बोलते भी थे कि महर्षि जी हम लोग जो हैं ध्यान सिखाते हैं, तो हमने तो गुरुदेव को देखा नहीं है, जो ध्यान शिक्षक नए बने थे उस समय, तो हम तो आपकी पूजा करना चाहिए हमको। तो महर्षि समझाते थे ज्ञान जो है वो तो गुरुदेव का है, हम तो एक माध्यम थे, हमारे माध्यम से तुमको मिला है, तो पूजा तो गुरुदेव की ही होनी चाहिए, और हमारे माध्यम से तुमको ज्ञान मिला है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव का है। तो कई ध्यान शिक्षक हम लोगों के समय ऐसे भी आए, हमने कईयों को मिले, देखा, तो उनको ये था कि भाई महर्षि जी की फोटो रखनी चाहिए पूजा में। महर्षि जी ने बिल्कुल मना किया था, नहीं, जब हम ध्यान सिखाने की पूजा करते हैं तो ये उसमें सिर्फ गुरुदेव की फोटो रहे। ये महर्षि जी का अपना समर्पण जो गुरु के प्रति था, और ज्ञान जिन गुरु से हमको प्राप्त हुआ था, जो अभी मुदिता मैम ने बताया कितने साल तक वो सीट जो थी गुरुदेव की खाली रही, वो इसीलिए खाली रही कि गुरुदेव को लगा कि ये सब सांसारिक चीजें हैं, गद्दी पे बैठना और धर्म का प्रचार करना, लेकिन अल्टीमेटली उनको कन्विंस किया गया। तो इतने महान वो थे, मतलब वो महात्मा तो बोले ही जाता है, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, इतने महान थे, उनका ज्ञान इतना डीप था कि उनको ये सब चीजों से मतलब। लेकिन फिर जब वो संसार में उन्होंने ये गद्दी स्वीकार करी कि हमको जो है, गद्दी का मतलब होता है कि सनातन धर्म का प्रचार करना नॉर्थ इंडिया में, जब उन्होंने वो जिम्मेवारी ली तो उनको लगा कि हम इसके जो भावातीत ध्यान का जो ज्ञान है, जो उन्होंने निकाला वेदों से, पुराणों से, इसके द्वारा हम सभी संसार का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जब गुरुदेव की समाधि होने लगी, और ऐसी कहानी है, कितना सच है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे पिताजी बतलाते थे तो अब सच ही होगा कि जब गुरुदेव की समाधि हुई तो महात्माओं के शरीर को जल समाधि दी जाती है। तो बनारस के नदी में, बनारस में गंगा नदी में, बनारस में महर्षि जी ले करके गुरुदेव के शरीर को, उसको कुछ तरीके से करा जाता जिससे कि फिर ऊपर ना आए, भारी रहे शरीर, नीचे चला जाता। तो महर्षि जी गुरुदेव के शरीर को लेके नीचे उतर गए नाव से, और नदी के तट तक चले गए होंगे मेरे ख्याल से, जैसा होता है नदी में जब भारी शरीर लेकर के नीचे उतरते हैं। तो बहुत देर तक नहीं आए। लोग ऐसा कहते हैं कि 8 साढ़े 8 मिनट तक महर्षि जी ऊपर नहीं आए। तो लोगों को लगने लगा कि महर्षि जी ने भी गुरुदेव के साथ जल समाधि ले ली है। उसके बाद करीब मेरा ख्याल है 8 साढ़े 8, ऐसा लोग बोलते हैं, 8 साढ़े 8 मिनट के बाद महर्षि जी ऊपर आए, तो आके नाव में बैठ गए। और उसके बाद जो उनके गुरु भाई थे और सबको बताया कि हमको ऐसा गुरुदेव का ऐसा निर्देश जैसा मिला कि जो ज्ञान है, भावातीत ध्यान का जो ज्ञान है, इतना सरल है और इससे मनुष्य को बहुत शांति मिल सकती है, सभी लोगों की पॉजिटिविटी और सत्व बढ़ सकता है। इस ज्ञान को प्रचार करना चाहिए, और इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए इसको तुम सारी दुनिया में फैलाओ, खाली भारत में नहीं या नॉर्थ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में फैलाओ। तो गुरु का वो जो उनको उस समय इंस्ट्रक्शंस मिले, जब वो गुरु की समाधि में नीचे गए, तो वो महर्षि जी ने कहीं अपनी किसी किताब में वर्णन भी किया, किसी टेप में बताया भी था कि फिर हमने उसको अपना धर्म मान लिया कि हमें गुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई है और हमको अब सारी दुनिया में घूम घूम के भावातीत ध्यान का प्रचार करना है और गुरुदेव के इस ज्ञान का प्रचार करना है। तो इतनी बड़ी उनकी श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति कि उन्होंने गुरुदेव की उस इंस्ट्रक्शन को लिया और भावातीत ध्यान का जो सरल प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत सरल होता है और आम जनता के लिए बिल्कुल सरल स्वाभाविक ध्यान की प्रक्रिया है, उसको उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया।
ये जो हम लोग देखते हैं, इतना महर्षि जी का जो प्रचार होता है, इतना दुनिया में फैला, इतनी, और देखिए कितने कितने गजब की बात है, कितने कमाल की बात है कि व्हेन महर्षि स्टार्टेड हिज मूवमेंट, ही स्टार्टेड अलोन, वन वन पर्सन, विदाउट, अभी तो जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो पता करते हैं कौन हमको लेने आएगा एयरपोर्ट में, किस होटल में हम रुकेंगे, किस जगह जाएंगे, वहाँ कौन ले जाएगा, वहाँ कौन मिलेगा। लेकिन उस समय सोचिए, जब जब कम्युनिकेशन के भी साधन नहीं थे, 1955-56 की बात है, जब कम्युनिकेशन के भी इतने साधन नहीं थे, सिर्फ चिट्ठी के द्वारा बात होती थी, उस समय महर्षि जी अकेले निकल के, बिल्कुल ऑल अलोन, कलकत्ता से जहाज के द्वारा निकले, जो पहला उनका सफर था, उस तरफ से गए थे रंगून वगैरह होते हुए, तो अकेले निकले थे। लेकिन उनके पास जो था, उनके गुरुदेव का आशीर्वाद था। ये होता है गुरु का आशीर्वाद, जो महर्षि ने सारी जिंदगी गुरु को इसीलिए याद किया कि आपके आशीर्वाद से ही हम जो है इतना दुनिया में इतना प्रचार आपके ज्ञान का कर पाए। और कभी कभी महर्षि जी बोलते थे कि ये गुरु का आशीर्वाद है, जिसके कारण इतना फैल रहा है, सब कुछ इतना बढ़ रहा है आगे। हमको एक उदाहरण याद है, हम एक बार ऋषिकेश में थे, महर्षि जी, हम छोटे थे उस समय बहुत, तो महर्षि जी कहीं जा रहे थे, तो किसी पंडित ने कहा कि ये एक होता है दिशाशूल कहते हैं अपने, कि किस दिन किस दिशा में नहीं जाया जाता है, या किस दिन किस दिशा में जाना अच्छा होता है। तो उसने कुछ कैलकुलेट किया कि महर्षि जी आप इस तरफ जाएंगे और ये दिशाशूल लग जाएगा, इतने बजे निकलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो महर्षि जी ने मुस्कुरा के कहा, हम तो गुरु की आज्ञा से निकले हैं और आज नहीं निकल रहे हैं, हम तो कई साल पहले निकल चुके हैं। अभी तो ये यात्रा चल रही है, हमारी यात्रा तो कभी की शुरू हो चुकी है, और गुरु की आज्ञा से शुरू हुई है। तो हमारे ऊपर ये जो बंधन है दिशाशूल का, वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो गुरु की आज्ञा है, और दूसरा हमारी यात्रा तो शुरू हो चुकी है कई साल पहले। तो इस तरह से इतना डिवोशन, इतनी श्रद्धा महर्षि जी की थी, क्योंकि हमारे जीवन में जो गुरु का महत्व होता है, वो महर्षि जी ने पूरी तरह से साकार किया अपने जीवन में, और उसकी उनको सफलता भी मिली। हम लोग जो हमारे जीवन में जो गुरु आए, जो हमको भागवती ध्यान का शिक्षा दी, उन्होंने गुरुदेव के तरफ से माध्यम बन के शिक्षकों ने, उन्होंने भी वही काम किया है कि गुरुदेव की शिक्षा को हमें माध्यम बन के हमको सिखाया। जितने आप लोगों ने भागवती ध्यान सीखा है, वो सब गुरुदेव की शिक्षा है। क्योंकि गुरुदेव जो है, गुरु जो होते हैं, अपने थोड़ा सा अंतर होता है, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो होते हैं, वो हमको जो ज्ञान देते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिसको हम कन्वेंशनल नॉलेज भी बोल सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान होता है जो हमें समाज में समाज में स्थापित करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमें बड़े होकर के सर्विस करनी है, या हमको कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है। तो ये जो ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिससे हमें अपना परिवार चलाने के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, सब उसमें आता है। जो वो हमारे शिक्षक होते हैं, उनका भी सम्मान उसी लेवल पे होता है जिस लेवल पे गुरु। लेकिन गुरु जो होते हैं, वो हमको जो ज्ञान देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स वगैरह से परे होता है, उससे अधिक, उससे डिफरेंट होता है। क्योंकि हमको दो तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक तो व्यवहारिक ज्ञान, जिसके द्वारा घर परिवार समाज में हमारी व्यवस्था स्थापना होगी, और दूसरा जो ज्ञान होता है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, वो इसलिए जरूरी है कि जो अपने यहाँ मान्यता है, सनातन धर्म की जो मान्यता है, वो ये है कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों को पार करने के बाद, जो आत्मा हमारी है 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव का जन्म लेती है, मानव के योनि में जन्म लेती है। और मानव की योनि एक ऐसी है, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माना गया है उसमें। हालांकि लोगों को वो होगा कि कितने हम इंटेलिजेंट हैं, कभी लड़ाई होती, कभी कुछ करते हैं, वो एक अलग पॉलिटिकल विषय है। लेकिन बाकी जितनी योनियां भगवान ने बनाई है, उसमें सबसे इंटेलिजेंट जो है ह्यूमन बीइंग को माना गया है। और अपने सनातन धर्म में ये भी कहा गया है कि एक यही योनि है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको अल्टीमेट रियलिटी बोला जाता है, जो हम भगवान में, जिसकी आत्मा को परमात्मा में मिलन जिसको बोला जाता है। बहुत से लोग, आप लोग बहुत छोटे होंगे तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कभी पढ़ो, कोई पुराण पढ़ो, कोई वेद पढ़ो, तो आपको पता लगे, गीता पढ़ो, तो पता लगेगा इसका क्या अर्थ होता है कि अपने को, जीवन को किस तरह से मोक्ष की तरफ ले जाना और मोक्ष की प्राप्ति करना। ये उद्देश्य होना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम अपने सारे कर्मों से परे होकर के और परमात्मा में मिल जाए। तो ये जो ज्ञान देता है, ये गुरु देता है, ये ज्ञान, इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों ज्ञान जरूरी हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करते हैं, उनको
उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो रोज ही करना चाहिए। और तभी कहते हैं कि गुरु की इतनी महानता कही गई, बहुत से दोहे लिखे हैं, कई बड़े ऋषि मुनियों ने दोहे लिखे हैं। एक तो बड़ा सिंपल दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु की कृपा से ही, गोविंद मतलब भगवान, भगवान कृष्ण का नाम है वैसे गोविंद, लेकिन उसका जो मतलब है कहने का कि भगवान की प्राप्ति जो हमको होती है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा में मिलना बोलते हैं, वो गुरु की कृपा से ही संभव है। बिना गुरु के हमको भगवान की प्राप्ति होना, हमको मोक्ष का रास्ता प्राप्त होना मुश्किल होता है। तो आज का दिन जो है, गुरु पूर्णिमा का दिन जो है, वो अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करके उनको पूजा करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना होता है। हमारे शिक्षकों का जो हमारे शिक्षक, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमको विषय व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं, उनको तो हम रोज मिलते हैं और उनका रोज आशीर्वाद लेना चाहिए, सभी शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों को। और क्योंकि उनके द्वारा आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। और हमारे जो गुरुदेव के जो ज्ञान है, भगवती ध्यान जो हमको मिला है, उसको भी रोज करना चाहिए, तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। तो दोनों तरह के गुरुओं की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वता है। और इसीलिए आज का दिन जो है, today's Guru Purnima is very important for us, because we pay our respect, we pay our tribute to our Guru for bringing us in the path of enlightenment. This is the path of enlightenment बोला जाता है. मोक्ष means enlightenment. When you are ultimately in the state of God consciousness, unity consciousness, that is the state that where you can go only with the blessings of your Guru. And fortunately for us in this generation, we had Maharshi Ji in our generation, and because of Gurudev, this knowledge of ultimate reality or ultimate salvation or ultimate enlightenment, this knowledge was made so simple with the blessings of Gurudev, that anybody and everybody can practice it every day in their life and bring themselves to the level of ultimate reality, ultimate enlightenment. Bring peace in their life, bring happiness in their life. Maharshi always used to say life is bliss, because life is bliss. Life doesn't have to be a struggle. We make it a struggle. Otherwise, life is generally bliss. If you practice the transcendental meditation and you follow the advice of your spiritual guru, then life is always bliss. This is a very day, very beautiful day to celebrate and to remember all the teachings of our past gurus, and respect that and bring that in our life, and continue to the path of evolution, with all blessings and all from Maharshi to everybody, and all good wishes to all of you. Jai Gurudev. थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे और सरल तरीके से गुरु और आध्यात्मिक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है के बारे में बताया. Thank you, sir, for enlightening and enriching us with your words of wisdom. Now I request the IT team to play the tape of Maharshi Ji. महेश योगी उपदेशामृत प्रवाह. यह विश्राम आत्मा का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है, और मनुष्य योनि में वो पूरा का पूरा अपनी चेतना में लहरा ले सकता है. कौवे की योनि में या बंदरों की योनि में या घोड़े हाथी पशुओं की योनि में ये इतनी मादा नहीं है कि उस पूर्णता के लहरे में वो उनकी चेतना लहरा सके. लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में वो सब देवताओं का वास होने के कारण पूरी की पूरी चेतना में जो आनंद का हिलोरा है, जो सर्व समर्थता का सामर्थ्य है, वो मनुष्य में है और वो स्वभाव से है. खाली अपना जो स्वभाव है उसको व्यवहार में, भीतर की चीज़ को बाहर व्यवहार में ले आने के लिए शिक्षा है. योग तो योग है. जो भक्त और भगवान का संबंध है, ठीक वही संबंध
शिष्य और गुरु का है। वो कहते हैं न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम शिव शासन। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम शिव का उपदेश है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु से बड़ा कोई नहीं। ये क्यों है? युक्त्या च गुरु दत्तया। गुरु क्या करते हैं? युक्ति देते हैं। और युक्ति क्या है? वो दृष्टि बदल देते हैं। एक दृष्टि है मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। दूसरी दृष्टि है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो बदलावट हुई ये गुरु की कृपा कहते हैं इसको, गुरु की कृपा कहते हैं। और गुरु की कृपा में क्या है? वो युक्ति है, युक्ति है। एक बड़ी भारी चट्टान हो कि बड़ी चट्टान है, 50 आदमी उसको लग के ढकेल नहीं सकते। एक कोई जो युक्ति जानते हैं, कहते हैं लीवर का सिद्धांत है। एक ऐसा लकड़ी लो और उसके नीचे एक पत्थर रखो और ऐसा करके दबा दो उसको, खट से पूरी बड़ी भारी है बहुत भारी चट्टान दूसरी तरफ फेंक दी जाएगी उस युक्ति के द्वारा। अच्छा देखो, सीधे सीधे अपने समझते हैं गुरु शिष्य का संबंध होता है। कर्म जो है वो कर्ता और क्रिया, और जो कर्म होता है कर्ता क्रिया और कर्म को, ये 3 टुकड़े मिलके कर्म होता है। तो 3 टुकड़े मिलके कर्म होता है। इसके मायने ये हुए कि कर्म बंधन का हेतु है चीज एक वास्तव में, उसको 3 कर लिया। तो जब 3 कर लिया तो 3 में वो बंध गया। देश काल की सत्ताएं खड़ी हो गई, अलग अलग सत्ताएं खड़ी हो गई। एक वो हुआ, देश काल की सत्ताएं 3 हो गई। गुरु क्या करते हैं? गुरु कहते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको बोलने में। गुरु क्या कहते हैं? त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। त्रिधा बद्धो विषय वृषभो रोरवीति। वृषभ माने ब्रह्म। 3 बंधनों में बंध के ब्रह्म गुंजायमान हो रहा है। ये युक्ति है। ये त्रिधा बद्धो, ये ऋषि देवता छंद में 3 गुण आ गए। दृष्टादृश्य दर्शन में 3 गुण आए, कर्म और कर्म की क्रिया और कर्म का ये रूप 3 आ गए। तो गुरु क्या कहते हैं? इन 3 में बंधा हुआ ब्रह्म गुंजायमान है। ये युक्ति है। काय की युक्ति है? 3 वाली दृष्टि को एक दृष्टि में कह दिया, 3 की दृष्टि को एक की दृष्टि बना दिया। शिष्य कहते हैं कि गुरु जी ये है, ये है, ये ऋषि है, ये है देवता है, ये है, ये तो वेद में लिखा है, ये ऋषि है, ये देवता है, ये छंद है, ये 3 हो गया, 3 हो गया। गुरु जी कहते हैं त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। ये 3 गुणों में बंधा हुआ ब्रह्म, ये 3 गुणों में बंधा हुआ ब्रह्म उसका स्वर है। 3 गुणों में बंधा हुआ एक स्वर है। एक एक गुण का एक एक स्वर अलग अलग है। त्रिधा बद्धो, ये 3 स्वर होते हैं आ ई उ।
उसका पूर्णता का स्वर है, शांत प्रशांत शिवत्व का, चेतना का, आत्मा का स्वर है आ। क्योंकि आ स्वरित है, स्वरित है, मैंने वो क्रियावान है। तो जो वो आ जो क्रियावान है, तो एक तो दृष्टि है कि वो आ शांत है, दूसरी दृष्टि है कि वो आ क्रियावान है, माने ई है। तो जब वो ई की दृष्टि आई तो आ की दृष्टि गुम गई, ढक गई। तो आ में ई है और आ में ऊ है, और आ ई ऊ की तीनों को मिला के एक दृष्टि संहिता की दृष्टि है, वो ऋ की दृष्टि है, वो ऋग्वेद हो गया। तो आ ई ऊ वो एक ही चीज है, आत्मा है। वो आत्मा का एक स्वर आ है, उसी स्वर के भीतर ई है, दूसरा स्वर उसी के भीतर ऊ है, तीसरा स्वर उसी के भीतर ऋ है, चौथा स्वर है। तो ऐसे ये 8 स्वर होते हैं। वो 8 स्वर क्या क्या होते हैं? आत्मा की 8 प्रकृतियों की जो क्रियाएं हैं, एक एक प्रकृति की जो क्रिया है, तो वो एक एक प्रकृति की क्रिया का एक एक स्वर है, एक एक स्पंदन है, एक एक शब्द है, एक एक गूंज है। और वो एक के भीतर एक है, एक के भीतर एक है, एक के भीतर एक है। तो ये 3, एक के भीतर 3 हैं, एक के भीतर 8 हैं, फिर 8 प्रकृतियां हैं। तो एक एक प्रकृति में 8 प्रकृतियों की स्मृतियां हैं, तभी तो एक दूसरे से निकलती आती हैं, तभी एक दूसरे से निकलती आती हैं। ये वही दृश्य है जैसे वृक्ष के बीज में पोल जो होती है, उस पोल में सारी स्मृतियां रहती हैं, और फिर एक से एक निकलती आती हैं, निकलती आती हैं, निकलती आती हैं, निकलती आती हैं, निकलती आती हैं। तो आत्मा के आ में पूरी आत्मा की प्रकृतियां हैं, और उनको कहते हैं 8 हैं। और वो एक के भीतर एक हैं, एक के भीतर एक हैं, एक के भीतर एक हैं। तो गुरु क्या कहते हैं? गुरु क्या करते हैं? युक्ति देते हैं। क्या युक्ति है? कि देखो आ के भीतर ई है, ये युक्ति है। आ ई ऊ ऋ ये अलग अलग हैं। तो कहते हैं वो ये अलग अलग नहीं है, एक के भीतर एक हैं, एक के भीतर एक है, एक के भीतर एक हैं। इतना गुरु का कहना पूरे ज्ञान का प्रदर्शन हो जाता है। युक्त्या च गुरु दत्तया, गुरु युक्ति देते हैं, गुरु युक्ति देते हैं, गुरु युक्ति देते हैं। वशिष्ठ ने क्या किया? जब राम चले गए, वशिष्ठ ने क्या किया? भरत को समझाया। क्या समझाया? तुम तो पूजा करते रहो, अपनी चेतना में राम को संभाले रहो, अपनी चेतना में राजा राम को संभालेगा, राम राज्य होता जाएगा। ये जो राम राज्य की हमने स्थापना की है, वो हमने स्थापना नहीं की है, ये तो लौकिक भाषा में बोलना पड़ता है। ये राम राज्य सहज स्वाभाविक प्रकृति प्रेरित विश्व के साम्राज्य का जो विधान वेद है, जो नित्य अपौरुषेय है, जिसको बनाए नहीं, जो स्वयंभू है और नित्य है, वो प्रमाण है। प्रमाणम परमम श्रुति, श्रुति का प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है। वेद विज्ञान विद्या सर्वज्ञ सर्वसमर्थ विद्या है। शिक्षा में सर्वसमर्थता है, माने वैदिक शिक्षा में सर्वज्ञता है, वैदिक कर्म विधानों में
सर्वसमर्थता है। वैदिक स्वास्थ्य प्रणाली में हेयम दुःखमनागतम, दुख आने के पहले उसको हटा ले जाते हैं, और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आ की, आत्मा की, और आत्मा में सारे देवता होते हैं, उनकी धारणा करते हैं, अपने चेतना में उसको धारण करते हैं, चेतना में धारण करते हैं। ये भारत की अपनी निधि है, ये भारत की अपनी निधि। Now I would like to request to Gaurav, TM teacher, to summarize and give the main points from the tape. जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस टेप में महर्षि जी ने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि गुरु क्या करते हैं। गुरु युक्ति देते हैं। युक्ति मतलब टेक्निक देते हैं। किसी भी मुश्किल कार्य को आसान करने के लिए जो युक्ति या टेक्निक दी जाती है, उसी को गुरु प्रदान करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल महर्षि जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर किसी बड़ी चट्टान को अगर हटाना है तो आपको दो तरीके हैं, या तो बहुत सारे लोग उसको धक्का मारने की कोशिश करें, या तो एक लिवर का सिद्धांत सबको पता है कि छोटा सा पत्थर पहले लगाइए, फिर एक लकड़ी डाल के उस बड़े पत्थर को हम हटा सकते हैं। तो ये गुरु की एक तरह से युक्ति मानी गई है, एक टेक्निक मानी गई है कि उस टेक्निक से हम बड़े से बड़े पत्थर को हटा सकते हैं। सिमिलरली महर्षि जी ने करीब पिछले 60 सालों से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी पत्थर यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की अपनी जिंदगी से दूर करी है। सो गुरु का महत्व यही है कि गुरु एक बहुत मुश्किल में पड़े हुए लोगों की बहुत आसानी से सहायता कर सकते हैं, एंड टीएम यही करता है। टीएम में सबसे सिंपल, नेचुरल और ये एफर्टलेस टेक्निक है जिससे हम अपने माइंड को बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर आवर माइंड इज सेटल डाउन इन आवर ओन कॉन्शियसनेस, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है, उससे आपकी हेल्थ पे यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। और एक चीज और बोली थी महर्षि जी ने, जैसे कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, और एक चीज जैसे कि महर्षि जी ने बहुत अच्छे से शब्दों में एक्सप्लेन करी है कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो एहम दुखम अनागतम, दैट मीन्स अवॉइड द डेंजर बिफोर इट कम्स। हम पहले ही मुसीबतों से निवारण पा सकते हैं कि अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। और प्रिपेयर्ड कैसे हों? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिनचर्या में 20 मिनट्स मेडिटेशन यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सुबह और शाम करना है। एंड ऑटोमेटिकली व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली फाइन, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली फाइन, इट स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी। वो आपके शरीर पे अपने आप स्वभाव देने लगता है कि आपके जो स्ट्रेसेस हैं, जो एक बहुत बड़ी चट्टाने हैं हमारे शरीर में, वो ऑटोमेटिकली निकलने लग जाती है। सो इसका मादा ये है कि महर्षि जी इसको बहुत सिंपल अक्षरों में बोलते हैं कि हमें whatever we put our attention on will grow stronger in our life. If we want to go more healthier, you have to just put your attention into it. If you want to do something else in your life, just put your attention into it. Automatically you will get more of that. एक चीज महर्षि जी बोलते हैं, हमेशा हमेशा ये बोलते हैं कि कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज द टेक्निक वेयर यू कैन फाइंड योरसेल्फ। अपने आप को आप अच्छे से जान सकते हैं। So it is my privilege to propose a word of thanks and acknowledge the contribution of those who have worked hard to make this celebration flawless with their untiring efforts. Thank you very much for joining this event. Thank you so much. Jai Gurudev.